Hello and welcome to the YouTube channel of Culture. Today we will discuss about a very important topic, that is the important sources of the Indian Constitution. So we all know that when the Indian Constitution was framed, the framers of the Constitution looked into various other different available constitutions, and after taking the help from all those constitution, reading all those constitution, we tried and make a new constitution of our own, taking into consideration the prevailing situation in India and the geographical conditions of India. So we can say that various provisions were borrowed from other nations, but they were absorbed in Indian Constitution to suit its own polity and governance. So yes, definitely we adopted this constitution taking into consideration the polity and the governance of India. लेकिन हमने बहुत सारे और देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस को देखा कि किस तरीके से वहां पे सिस्टम चलता है, किस तरीके से कॉन्स्टिट्यूशन काम करता है, टू टेक सर्टेन हेल्प, टू टेक जस्ट इन हेल्प from the previous governments which are running in different part of you know the world. So it was, and how it was drafted, so it was drafted taking into consideration the perspective of Indian national struggle and geographical diversity. So we can say that when we framed this constitution, so we considered like it was drafted considering the perspective of Indian national struggle for the independence struggle and diversity, that is geographical diversity. So we take care of all these things while drafting a new constitution for the newly independent India. So it was very important to take into consideration every aspect of every aspect prevailing in India, so that to make a better constitution for generations to come. आने वाली जितनी भी जनरेशन है उनके लिए एक अच्छा संविधान बनाना था, तो डेफिनेटली इसके लिए थॉरो स्टडी किया गया और अपनी कंडीशंस को भी यहाँ पर देखा गया. एंड आफ्टर ऑल this became the most detailed most detailed constitution of the world, और in the world. दुनिया का सबसे ज्यादा डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई था और है तो वो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, बिकॉज ओरिजिनली इट हैड अबाउट आर्टिकल्स अराउंड 395 in the original constitution, but if you look at the USA, it has only 7 articles, only 7 articles. ऑस्ट्रेलिया, अगर हम ऑस्ट्रेलिया के लिए देखें तो they have around 128 articles, so very less number of articles as compared to India. So this was the thing, when it was initially this constitution was made or drafted. So these were certain things which we must know about it. Then now coming to the different sources that from where these provisions have been taken, जो अलग अलग provisions हमने अपने संविधान के अंदर इंक्लूड किए, वो कहाँ कहाँ से हमने लेकर हेल्प ली, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या चीजें ली. तो सबसे पहला जो मेजर हमने जो जहां से लिया वो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट दिस पर्टिकुलर एक्ट, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, तो उस समय पे अगर हम इस चीज को देखें तो इट वाज द longest act passed by the British government, passed by the ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा पास किया गया सबसे बड़ा एक्ट था उस समय में, विद 320 sections plus 10 schedules. So it was one of the longest
एक्ट पास्ड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट सिंस इट वाज देयर इन इंडिया। तो सबसे बड़ा यहाँ पे जो था वो ये था, और इसके अंदर से बहुत सारी चीजें जो एक रूपरेखा थी वो हमारी इंडिपेंडेंस की, जो बाद में हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया उसकी एक रूपरेखा जो है यहाँ से बनना शुरू हो गई थी। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया खुद आया कहाँ से, आखिर कहाँ से इसके लिए कहाँ से किसके बेसिस पे इसको बनाया गया? तो इट एक्चुअली drawn its content from different sources, from like Simon Commission report, Simon Commission report. Then the source was the discussion at third roundtable conference. Then white paper of 1933, and the reports of select committees. So these were certain sources of this constitution, this particular government of India Act 1935. तो हमने यहाँ से क्या क्या चीजें हमने ली, अब हम वो देखेंगे कि हमने यहाँ से क्या क्या चीजें बोरो की. So first thing was the federal scheme of government. Like it was also having two houses in the assembly. So one was the Council of States, that was upper house, and the Federal Assembly. So Federal Assembly was the lower house. So this was taken from the Government of India Act 1935. The next one is the emergency provisions. Some of the emergency provisions which prevail today or taken into consideration of this constitution was taken from Government of India Act 1935. फिर हमने और क्या लिया यहाँ से, पब्लिक सर्विस कमीशन जो प्रोविजन है वो हमने वहां से लेने का काम किया. Then the office of governor, that was also taken from the Government of India Act 1935. उसके बाद जो जुडिशियल सिस्टम है उसके लिए भी हमने वहां से काफी प्रोविजंस बोरो किए. एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स वो भी हमने वहां से ली. So these were certain things taken from the Government of India Act 1935. यहाँ से हमने ली. और साथ ही अगर हम बात करें इसकी पब्लिक सर्विस कमीशन की जो यहाँ पे है, तो अगर आप देखेंगे तो ये कहाँ पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गिवन है, तो इसको अगर हम देखें तो ये आपका गिवन है पार्ट 13 चैप्टर 2. वहां पे हमारी पब्लिक सर्विस कमीशन के जितने भी प्रोविजंस है वो गिवन है आपके पार्ट 13 चैप्टर 2 के अंदर. Then coming to the next constitution from where we have borrowed some provisions, and it is one of the major constitutions from where, one of the oldest constitution from where we have borrowed certain things. बहुत सारी चीजें हमने यहाँ से ली, जैसे कि सबसे पहली चीज जो हमने यहाँ से ली that was the preamble. सबसे पहली चीज जो ली हमने preamble. और preamble क्या होता है हमारा, तो preamble से हमें क्या समझ आता है, तो preamble is nothing but it's a kind of introductory statement of the constitution. Introductory statement of the कॉन्स्टिट्यूशन. और इंडियन प्रियम्बल के बारे में अगर हम बात करें तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो भी हमने पहले से अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो यू कैन जस्ट लुक एट दैट वीडियो टू नो मोर अबाउट द प्रियम्बल एंड एवरीथिंग अबाउट द प्रियम्बल के बारे में सारी चीजें, जानकारी जो है आपको उस वीडियो से वहां पे मिल सकती है. तो पहली चीज हमने यहाँ से ली प्रियम्बल. देन हमने लिया fundamental rights, certain fundamental rights that were borrowed from the यूनाइटेड स्टेट्स. और जनरली जो जितने भी फंडामेंटल राइट है ये मेनली जो है सभी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, सो दे आर बेसिकली टेकन फ्रॉम द ह्यूमन राइट्स ओनली. और ये हमारे फंडामेंटल राइट्स गिवन कहाँ है, तो ये हमारे गिवन है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35. यहाँ पे हमारे गिवन है फंडामेंटल राइट्स. देन हम आते हैं द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट. द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट, ठीक है, कि भाई स्टेट लेवल पे, सेंट्रल लेवल पे. सो दिस structure is there in India also, which is borrowed from United States. Then the electoral college has been brought from the United States. Then the independence of judiciary, कि भाई जो है जुडिशरी जो है वो स्वतंत्र तरीके से काम करे, सरकार के प्रेशर में या फिर किसी और एजेंसी के प्रेशर में काम ना करे. साथ ही सेपरेशन ऑफ पावर अमंग द 3 ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट. 3 ब्रांचेस कौन कौन सी हो सकती है हमारी, द जुडिशरी,
द एग्जीक्यूटिव एंड द लेजिस्लेचर, कि तीनों ही जो बॉडीज हैं वो अपना इंडिपेंडेंटली काम कर सके, जो ब्रांचेस ऑफ गवर्नमेंट है दे कैन वर्क सेपरेटली एंड हैविंग देयर ओन पावर्स इन देयर ओन डोमेन। अपने डोमेन में सबके पास अपनी अपनी पावर है, एंड दे मस्ट यूज दोज पावर्स टू हैव अ चेक एंड बैलेंस इन द सिस्टम। देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू का सिस्टम, कि भाई अगर सरकार कोई कानून बनाती है और वो कहीं ना कहीं फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, या फिर जो कॉन्स्टिट्यूशन की मूल भावना है अगर उसको वहां पे किसी प्रकार से जो है उसको वायलेट करने की कोशिश करता है, देन डेफिनेटली वन कैन गो टू द द कोर्ट फॉर द जुडिशियल रिव्यू। उसका जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है कोर्टों द्वारा। देन प्रेसिडेंट एज सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज, कि भाई जो प्रेसिडेंट है हमारा वो सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म फोर्सेज है, जैसे कि वो अमेरिका में होता है। तो हमने इंडिया में भी जानते हैं कि ऑल जितने भी तीन फोर्सेज हैं हमारी, उन तीनों फोर्सेज के जो सुप्रीम कमांडर है वो हमेशा प्रेसिडेंट ही होते हैं। देन another provision of equal protection of law, it has also been taken from the United States Constitution। तो वहां से हमने लिया कि भाई जो लॉ है वो सभी को इक्वली प्रोटेक्ट करेगा। देन द यूनाइटेड किंगडम, अब हमने यूनाइटेड किंगडम दैट इज यूके, वहां से क्या चीजें ली। देन फर्स्ट इज द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, कि भाई पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का जो प्रोविजन है वो हमने वहां से लिया है। सो पार्लियामेंट्री फॉर्म में क्या होता है कि भाई वहाँ पे जो है मेंबर्स चुने जाते हैं, और उसके बाद फिर जो मेंबर्स जो लार्जेस्ट पार्टी होती है वो अपने में से एक लीडर चुनती है जिसको कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। तो दैट हैज बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद हम देखें तो आइडिया ऑफ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप का जो प्रोविजन है वो भी हमने यहीं से लिया, बिकॉज अगर हम और कंट्रीज में देखें तो बहुत जगह ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रोविजन है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। देन आइडियल ऑफ रूल ऑफ लॉ, जो रूल ऑफ लॉ का प्रोविजन है ये भी हमने यहीं से लिया। तो अगर हम देखें रूल ऑफ लॉ, तो ये जो इसके प्रोपाउंडर हैं जो सबसे बड़े जिनका नाम आता है दैट इज एवी डाइसी। एंड व्हाट डज दिस मीन, द रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, तो अगर हम इसका सिंपल मतलब समझे तो इसका मतलब ये होता है नो वन इज अबव लॉ, दैट एवरीबडी इन अ कंट्री will be governed by law and not by men. So we can also say rule of law and not of men, ठीक है। सो देर इज ऑलवेज अ रूल ऑफ लॉ, जैसे कि अगर इंडिया की भी बात करें हम तो हमेशा रूल ऑफ लॉ प्रिवेल करता है। ऐसा नहीं कि भाई लॉ में कुछ और है और जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जो पोस्ट पे बैठे हैं वो कुछ और कर दें, अगर वो वैसा करेंगे तो डेफिनेटली उसको नल एंड वॉइड किया जा सकता है। तो लॉ सबसे ज्यादा सुप्रीम है, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, ठीक है। तो ये भी हमने यहां से लिया। देन वी हैव द प्रोविजन ऑफ रिट, तो रिट का भी हमने लिया, 5 प्रकार की रिट होती है, वी हैव 5 काइंड्स ऑफ रिट्स, ठीक है। तो दिस हैज आल्सो बीन टेकन फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम। देन द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड हिज रोल, जैसे स्पीकर होता है हमारा कहाँ पे, इट इज देयर इन लोकसभा, और या तो लोकसभा में या फिर लेजिस्लेटिव असेंबलीज में जो हमारे पास होते हैं, वी कैन से इन द लोअर हाउस। तो जो जहाँ पे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वहां पे जनरली जो है इस तरीके से स्पीकर होते हैं, तो ये भी हमने वहीं से लिया है। देन लॉ मेकिंग प्रोसीजर, लॉ किस तरीके से बनाया जाए, किस तरीके से उस पर बहस हो, किस तरीके से वो पास किया जाए, ये जो प्रोविजन है ये भी कहीं ना कहीं हमने यूनाइटेड किंगडम से जो है लिया है। लिया है इन द सेंस वहां से हमने प्रेरणा ली है और अपने अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया है इंडिया के अंदर। देन प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, नाउ व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, इससे हमें क्या समझ आता है। तो इसका मतलब ये होता है दैट लॉ enacted will only be valid if correct procedure followed, अगर सही प्रोसीजर फॉलो किया गया है तभी उस लॉ को वैलिड माना जाएगा। तो हम कहते हैं प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ठीक है, कि भाई जो भी प्रोसीजर है उसी के अकॉर्डिंग लॉ बनाया जाए। मान लीजिए अगर पार्लियामेंट में कोई लॉ बनाया जा रहा है और उसको गलत तरीके से गलत रूल का इस्तेमाल करते हुए, जब कॉन्स्टिट्यूशन के विरुद्ध जाते हुए, जो प्रोविजन है उसके विरुद्ध जाते हुए अगर पास किया जाता है, देन डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ नहीं है, उस तहत नहीं किया गया है। Now we move on to the next one, that is the Irish Constitution. So Irish Constitution, that is the Constitution of Ireland. So we have taken certain provisions from here as well. सबसे पहला जो हमने लिया है that is the DPSP, और DPSP हमारा कहाँ पे mentioned है, तो it is mentioned under part 4 of the Constitution and it covers article 36 to 51। यहाँ ये इतने आर्टिकल कवर करता है।
And we also know that the directive principles are non-justiciable rights. Non-justiciable राइट्स हैं. नॉन जस्टिसेबल राइट मीन्स अगर इसका मान लीजिए पूरा नहीं भी किया जाता जो चीज इसमें लिखी हुई है तो वी कैन नॉट गो टू द कोर्ट. नॉन जस्टिसेबल राइट्स हैं एक प्रकार से ये. देन द नेक्स्ट इज द नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स टू द राज्यसभा. तो जो नॉमिनेशन प्रोसीजर है जैसे कि इंडिया के अंदर है, इंडिया के अंदर टोटल देयर आर 12 पीपल from different fields, they can be nominated. So total 12 members nominated by the president of India for 6 years. तो 6 साल के लिए यहाँ पे जो है नॉमिनेट किया जाता है 12 मेंबर्स को. और ये अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, इस तरीके से अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं. एंड इट इज द पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अपॉइंट देम. नाउ द मेथड ऑफ प्रेसिडेंट्स इलेक्शन. मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये भी जो है हमने आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से दिया गया है. और अगर हम देखें तो ये अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 54. एंड इसके इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें देन डेफिनेटली कौन कौन इसमें पार्टिसिपेट करता है. इलेक्टोरल कॉलेज की बात किया जाए तो डेफिनेटली द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, प्लस द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट्स. ये सभी जो हैं वो पार्लियामेंट सॉरी द प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं. तो these were certain provisions that DPSP nomination of members to the Rajya Sabha and the members method of election of president. These provisions have been taken from the आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन. ये सारी चीजें आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से यहाँ पर ली गई हैं. नेक्स्ट हम बात करें जो अगला देश है जहां से हमने लिया, दैट इज द ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन. ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीजें ली. तो वी हैव टेकन द प्रोविजन रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स विद इन द कंट्री एंड बिटवीन द स्टेट्स. सो अगर हम इस प्रोविजन को आज कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो कहां पे मेंशन्ड है. इट इज मेंशन्ड अंडर पार्ट 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 301 टू 307 वहां पे मेंशन्ड है इसके बारे में, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स के बारे में. देन सेकंड इज द पावर टू मेक नेशनल लेजिस्लेचर टू मेक laws for implementing treaties even on matters outside normal federal jurisdiction. So where it is mentioned that it is the the national legislature, that is the parliament, to have that power to implement the treaties, that is mentioned under article 253 वहां पे mentioned है. फिर हम बात करें कॉन्करेंट लिस्ट का प्रोविजन, ये भी ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है. सो इफ यू लुक एट द शेड्यूल 7, अगर हम शेड्यूल 7 की बात करें तो वहां पे मेंशन्ड है उसकी लिस्ट 3 में अगर हम देखेंगे तो वहां पे मेंशन्ड है आपकी कॉन्करेंट लिस्ट ऑन विच बोथ सेंटर एंड स्टेट कैन मेक द लॉ. बट इफ बोथ विल मेक द लॉ ऑन द सेम सब्जेक्ट देन डेफिनेटली सेंटर विल प्रिवेल ओवर दैट. सो दीज वर सर्टेन प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द ऑस्ट्रेलियन constitution. Now coming to the next one, that is the provisions taken from the French constitution. तो French constitution से हमने क्या क्या चीजें ली. तो the republic and the ideals of liberty, equality and the fraternity in the preamble. तो preamble में ये सारी चीजें आपने देखी होंगी जो सारी mentioned है. अगर हम बात करें republic तो what do we understand by republic. तो republic का मतलब ये है कि मान लीजिए आपने the supreme power in republic country, supreme power is held by people and their elected representatives. How, like in India, in the case of India, India is a republic country. So how is it republic? Because as we see the constitution or the preamble भी देखें तो कहता है we the people. हम उस constitution को दे रहे हैं तो it is the people of India who are supreme. Okay, so people of India, so basically in India we delegate our power to the elected representative. हम अपनी पावर जो है इलेक्ट करके MPs को देते हैं और वो पार्लियामेंट में जाकर हमारे लिए लॉज बनाते हैं हमारे बिहाफ पे. देन अगेन वी गेट द अपॉर्चुनिटी आफ्टर 5 years to re-elect them or elect someone else. So this is about the republic. Now the ideals of the liberty. So liberty में क्या क्या चीजें हैं हमारी, कौन कौन सी लिबर्टीज की बात करता है. अगर हम प्रियम्बल की बात करें, लिबर्टी ऑफ थॉट्स, expressions, belief, faith and worship. So हमें सोचने की आज़ादी,
एक्सप्रेस करने की आज़ादी, कुछ भी किसी भी चीज़ में बिलीफ रखने की आज़ादी, किसी भी रिलीजियस फेथ को करने की मतलब अपनाने की आज़ादी, और किसी भी तरीके की पूजा पाठ या जो भी हम करना चाहें, जिस तरीके से वर्शिप करना चाहें, इबादत करना चाहें, उन सभी की परमिशन हमें ये देता है। देन इट टॉक्स अबाउट द इक्वालिटी। इक्वालिटी की अगर हम बात करें और प्रियम्बल को देखें तो बात करता है इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। दो तरीके की इक्वालिटी की यहाँ पे बात करता है, द स्टेटस एंड द अपॉर्चुनिटी। एंड फ्रेटर्निटी, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड विद फ्रेटर्निटी? फ्रेटर्निटी इज ब्रदरहुड। इट्स मीनिंग इज द ब्रदरहुड अमंग द सिटीजन्स। ठीक है, भाईचारे की बात यहाँ पर करता है। तो दीज वर सर्टेन प्रोविजंस टेकन फ्रॉम द फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ कमिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, व्हाट वी हैव टेकन फ्रॉम द साउथ अफ्रीका। सो यहां से हमने लिया है सबसे पहले द प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट। अगर हम बात करें प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट तो कहां पे हमारा मेंशन है? इट इज मेंशन अंडर आर्टिकल 368। अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात करें तो वो जो प्रोविजन है वो वहां पे 368 आर्टिकल में दिए गए हैं। देन अबाउट द इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स। तो इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर्स, तो इलेक्शन किस तरीके से होते हैं? तो दे आर एक्चुअली इलेक्टेड बाय बाय whom? By the legislative assembly members, and every state has their own quota. Every legislative assembly of the state have their own quota of sending the Rajya Sabha members to the to the Rajya Sabha. देन तो अभी अगर हम बात करें अभी की, तो टोटल जो मेंबर्स की स्ट्रेंथ है, टोटल मेंबर्स, दिस इज 250, आउट ऑफ विच इलेक्टेड जो है मींस जो कि इलेक्ट करके भेजे जाते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली से, उनकी संख्या है 238। एंड दोज हु आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, नॉमिनेटेड, टोटल 12 मेंबर्स। तो इन टोटल इट विल बिकम 250। तो अगर हम पूरे टोटल की बात करें 250 मेंबर्स है, जिसमें कि 238 जो है लेजिस्लेटिव असेंबली से चुन के आएंगे और 12 मेंबर जो हैं वो प्रेसिडेंट द्वारा इलेक्ट यहाँ पे नॉमिनेट किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये प्रोविजन जो है आपके साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सोवियत यूनियन, दैट इज erstwhile यूएसएसआर। ठीक है, तो यहां से हमने क्या क्या चली, सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर आर्टिकल 51A। जो 51A जो हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करता है, और अगर हम टोटल आज की डेट में फंडामेंटल ड्यूटीज की बात करें तो टोटल 11 ड्यूटीज जो है वहां पे मेंशन्ड है। Then the second thing which we have taken is the constitutionally mandated planning commission to oversee the development of the Indian economy. So now it is no more a planning commission, but it is Niti Aayog. But this provision was taken from the the Soviet Union Constitution. तो ये provisions हमने यहाँ से सोवियत यूनियन के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिए। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने क्या चीजें ली? तो दो चीजें यहाँ पे ली गई, जैसे कि पहली थी द इमरजेंसी पावर्स टू बी इंजॉयड बाय द यूनियन, कि भाई we can say that it is the union which takes over the power or powers of the state government during इमरजेंसी। ठीक है, जिस टाइम इमरजेंसी लागू होती है तो सभी पावर जो है एक तरीके से यूनियन गवर्नमेंट के पास चली जाती हैं। देन द सेकंड इज द सस्पेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द इमरजेंसी। इमरजेंसी के दौरान जो है सभी फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो रद्द कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया के अंदर दो ऐसे आर्टिकल है जिनको सस्पेंड इमरजेंसी के दौरान भी नहीं किया जा सकता, और वो है आपके आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21। ये दो ऐसे आर्टिकल है जिनको आप उस दौरान भी सस्पेंड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सो दीज टू प्रोविजंस वर टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी। जर्मनी से हमने ये दो प्रावधान यहां से बोरो किए। देन कमिंग टू द नेक्स्ट, दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान। अब यहां से हमने क्या लिया? सो वी हैव टेकन द certain provisions with respect to the procedures established by law. So it means that laws which are enacted must have been followed in the correct mentioned provision, और वी कैन से प्रोसीजर। ठीक है, जो जैसा प्रोसीजर दिया हुआ है वैसा ही उसे वहां पे इस्तेमाल करना है लॉ बनाते दौरान। नेक्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। यहां से हमने क्या चीजें ली? देन
certain provisions with respect to the the fundamental duties we have taken it from there. Then the ideals of social, economic and the political justice in the preamble. तो ये हमने जो प्रियम्बल में जो ये चीज मेंशन है, द आइडियल ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रियम्बल जो दिया हुआ है प्रियम्बल के अंदर, ये भी हमने यहाँ से लिया है. Then these were certain provisions which we have taken from different constitutions. So it is very important that we must know the sources of the Indian constitution or from where we have taken the provisions, कहाँ कहाँ से हमने क्या क्या हेल्प ली. ये सारी चीजें बहुत जरूरी हैं जब भी आप किसी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं. So thank you so much. Thank you for joining us. We will definitely come up with more videos on the constitution and the constitutional law. इस पे हम और भी बहुत सारी videos लेके आएंगे डिटेल वे में, जो जिससे कि आपको संविधान को समझने में और भी ज्यादा आसानी हो. तो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच एवरीवन.